In our previous discussion, we have already discussed first subtopic of the chapter, political parties. Students, today we will discuss second subtopic of the chapter, political parties, and that is party system. Primarily, three types of party system we can see. First one is one party system, second is two party system, and the third is multi party system. Let us discuss all these three party system one by one. One party system, students, in one party system only one party is allowed to rule on a country. And nowadays China, China is the example of one party system, because student, in China only Communist Party is allowed to rule. Although theoretically there are many other political parties in China, but practically free and fair elections are not possible in China. That is why all political power is being enjoyed only and only by Communist Party of China. So China is the example of, you can say, one party system. And student, nowadays China has also exported coronavirus throughout whole world. China is getting enormous power. Chinese government is getting enormous power. Do you know why? Because of this one party system. Because one hand China is emerging as a threat to whole world community, and another hand China is also suppressing the human rights of Chinese people also. There is not any rules and regulations in China. China involves in many illegal activities, but nobody can raise voice against China. Why? Because there is not any opposition in China. Because Chinese, you can say, Communist Party is single political party of China. Okay. So this one party system of China, this one party system of China is very harmful for whole world community, and especially for India, because China is neighbor of India. Okay. Because in China, Chinese government is getting enormous power, and Chinese government also misusing this enormous power. For example, everybody knows that China is producing various types of commodities on very low cost. Why? Because Chinese government is not implementing labor laws in a proper manner. Okay. So because of this one party system, China is emerging as an economic power also. Okay. So China is the example of, you can say, one party system, and definitely we are expecting that a revolution will be taken place in China, and in this way we are expecting that in future this one party system will be changed in China, and China will also emerge as a democratic country. And students, you always remember that China is not a democratic country. Okay, China is not a democratic country. Why? Because free and fair elections are not being conducted in China. Okay, that is why China is not a democratic country. Okay, so China is the example of, student, one party system. Okay, next one is, you can say, two party system. Okay, two party system. Student, in two party system, two major political parties are allowed to rule on a country. Okay. And United States of America is the example of two party system, because in United States of America there are two major political parties. First one is Republican Party, and second one is Democratic Party. Okay. So in America, power is being shifted between two political parties, Republican Party and Democratic Party. Although there are some other political parties are also present in, you can say, United States of America, but basically government is being formed only and only by either Democratic Party or Republican Party. Okay, student. So you can say America, USA is the example of two party system. Okay. Next one is multi-party system. Okay. So student, in multi-party system, we can say India. India is the example of
Okay student, India is the example of multi-party system. Okay, multi-party, India is the example of student multi-party system. Multi-party system, in multi-party system there are many political parties and any political party can rule on the nation, rule on the country. Okay, means political power is being enjoyed by various political parties in this multi-party system. Okay, so India is the example of multi-party system, because you can see, in India there are many national political parties, there are many state parties also. Okay, so India is the example of multi-party system. And student, this multi-party system have many positive and negative aspect also. For example, this multi-party system adjust variety of India, because there is huge variety in India for culture point of view, for you can say fooding habits point of view, for clothing habits point of view. We have a vast variety from Jammu Kashmir to Tamil Nadu and from Arunachal Pradesh to Gujarat. Okay, so this multi-party system adjusts this variety. Okay, but sometimes we have seen some negative aspects also this multi-party system, because alliance politics has been practiced in India for many times, and in alliance politics political parties are focusing on their own development rather than development of the country. Okay, so this is the negative aspect of multi-party system also. And student, in India there are two major alliance: National Democratic Alliance, in short form this is known as NDA, National Democratic Alliance. Okay, in short form this is known as NDA, and second one is United Progressive Alliance, in short form this is known as UPA. Okay, means BJP and their alliance are known as National Democratic Alliance, and Indian National Congress and their alliance are known as United Progressive Alliance. Means NDA is led by Bharatiya Janata Party and UPA, United Progressive Alliance, is led by, you can say, Indian National Congress. Okay, so there are two alliance also. Okay student, so in this way we have discussed about three types of party system. और बच्चों इसको हम लोग हिंदी में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें, है ना। क्योंकि आप भी जानते हैं कि बोर्ड का जो पैटर्न है उसमें वही बच्चा 80 आउट ऑफ 80 ला पाएगा जिसका क्या है, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा, स्पेशली सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में। तो बच्चों आज हम अपने पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी चैप्टर के दूसरे सब टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है पार्टी सिस्टम, है ना। तो बच्चों तीन तरह के पार्टी सिस्टम होते हैं। पहला होता है वन पार्टी सिस्टम, है ना। बच्चों वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि बच्चों जिस देश में केवल एक ही पार्टी का शासन हो उसको हम क्या बोलेंगे, वन पार्टी सिस्टम। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है बच्चों, चाइना, है ना, या चीन। चाइना या चीन क्या है, वन पार्टी सिस्टम का एग्जांपल है। क्योंकि आपको पता है बच्चों चाइना में केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। तो बच्चों ये जो वन पार्टी सिस्टम है, ये जो चाइना का बच्चों वन पार्टी सिस्टम है, ये न केवल चाइना के लोगों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए क्या है, एक बहुत बड़ा पेन बन चुका है, एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है ना। क्योंकि बच्चों चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी, आपको पता है बच्चों चाइना में सभी महत्वपूर्ण पदों पर केवल और केवल वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, है ना। चाहे वो वहां के का कारपोरेट वर्ल्ड हो या चाहे वो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर जगह केवल और केवल क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही वहां पर छाए हुए हैं। और आपको पता है बच्चों कि चाइना में वहां के लोगों का जो ह्यूमन राइट्स है या फंडामेंटल राइट्स है उसका भी बहुत ज्यादा वायलेशन होता है ना। कभी चाइना बायोलॉजिकल बम बनाता है, कभी केमिकल बनाता है। पूरे विश्व को इसने क्या है, कोरोना बांट दिया है, ठीक है ना। पूरे विश्व को इसने क्या किया है, कोरोना बांट दिया है। तो बच्चों कहीं ना कहीं इन सबके पीछे कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है, ये वन पार्टी सिस्टम चाइना का, है ना। क्योंकि वहां कोई अपोजिशन है ही नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी अच्छा करती है या बुरा करती है, कोई उसका विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि वो अकेले हैं, कोई और है ही नहीं वहां पे, है ना। जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी है भी, तो बच्चों चाइना में क्या है, जो चुनाव होता है वो फ्री एंड फेयर नहीं होता है ना। तो इसलिए क्या है,
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं भी छोटी छोटी, वो सत्ता में नहीं आ पाती हैं, है ना। और कम्युनिस्ट पार्टी पिछले कई सालों से क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे सत्ता में है, और इसी वजह से ये पूरे विश्व के लिए और स्पेशली भारत के लिए कम्युनिस्ट पार्टी वहां की बहुत बड़ा एक खतरा बनती जा रही है ना। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में शायद चाइना में भी क्रांति हो, जैसे फ्रांस में 1789 में एक क्रांति हुई थी, तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद चाइना के लोग एक क्रांति करेंगे और वहां से इस कम्युनिस्ट पार्टी को क्या है, हटाएंगे, ताकि पूरे विश्व में जो एक कोरोना और दुनिया भर के वायरस फैल रहे हैं इस पे कुछ लगाम लग सके। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि बच्चों ये जो हम टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं, वन पार्टी सिस्टम, है ना, मैंने बताया कि चाइना में है, तो ये बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक भी है, क्योंकि बच्चों आज जो एक कोरोना फैल रहा है, जो तमाम प्रॉब्लम्स पूरे साउथ एशिया में जो एक सेफ्टी को लेकर प्रॉब्लम है, या साउथ चाइना सी में जिस तरह से चाइना एग्रेसिव हो रहा है, तो बच्चों उसके लिए मेन रीजन यही है कि चाइना में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है या टू पार्टी सिस्टम नहीं है ना। तो वहां कम्युनिस्ट पार्टी है तो वो अच्छा बुरा जो मन होता है वो करती है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, बिल्कुल वो क्या है, डिक्टेटर बन चुकी है कम्युनिस्ट पार्टी वहां की। ठीक है बच्चों, और दूसरा है टू पार्टी सिस्टम। बच्चों अमेरिका में क्या है, टू पार्टी सिस्टम है। बच्चों अमेरिका में या तो डेमोक्रेटिक पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी, दो में से कोई एक गवर्नमेंट बनाती है ना। कभी डेमोक्रेटिक पार्टी गवर्नमेंट बना लेती है और कभी क्या है, रिपब्लिकन पार्टी वहां गवर्नमेंट बनाती है। हालांकि कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं अमेरिका में, लेकिन वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके इतनी सीट्स उनके पास नहीं होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली दो पार्टी के हाथों में सत्ता रहती है अमेरिका में, कभी रिपब्लिकन पार्टी के हाथ में और कभी डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथ में। ठीक है, तो बच्चों जिस देश में दो पार्टियों के हाथों में शासन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, टू पार्टी सिस्टम। और इसका एग्जांपल क्या है, यूएसए है, और दूसरा आपका यूके या जिसको आप ब्रिटेन बोलते हो या यूनाइटेड किंगडम बोलते हो, वो भी क्या है, टू पार्टी सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। बहुत ही ध्यान से बच्चों वीडियो देखना, क्योंकि हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन भी कवर करते चल रहे हैं। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए कि राइट द एग्जांपल ऑफ वन पार्टी सिस्टम, तो आप क्या लिखेंगे, चाइना। अगर आ जाए राइट द एग्जांपल ऑफ टू पार्टी सिस्टम, तो आप क्या लिखेंगे, इंग्लैंड एंड यूएसए। ओके, और नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। तो बच्चों जो इंडिया है वो किसका एग्जाम्पल है, मल्टी पार्टी सिस्टम का, है ना। आप जानते हैं बेटा कि इंडिया में क्या है, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, है ना। भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, अकाली दल, ठीक है, बहुत सी पार्टी हैं। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। ठीक है बच्चों, तो इंडिया में क्या है, मल्टी, मतलब जिस देश में बहुत सारी पार्टियों के हाथों में सत्ता रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम हम बोलते हैं। ठीक है, और इंडिया इसका एग्जाम्पल है। अब बच्चों मल्टी पार्टी सिस्टम के भी अपने पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर हो, चाहे वो फूड हैबिट्स को लेकर हो, वेशभूषा को लेकर हो, है ना। तो बच्चों ये अलग अलग पार्टियां हैं, तो इससे क्या होता है कि जो डिफरेंसेस हैं वो सब लोग मिलकर सरकार बनाते हैं, तो इससे क्या है, आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती है ना। आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु और क्या है, तमिलनाडु और कश्मीर के कल्चर में बहुत अंतर है। आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के कल्चर में बहुत अंतर है। तो बच्चों जो मल्टी पार्टी सिस्टम है इसमें क्या है, ये जो डिफरेंसेस हैं इनको सही से एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और निगेटिव एस्पेक्ट ये है कि कई बार ये जो बहुत सी पार्टियां हैं ये सब जब मिलजुल के सरकार बनाती हैं तब क्या है, वो अपने हित के बारे में ज्यादा सोचती हैं और राष्ट्र हित के बारे में नहीं सोचती हैं, और है ना। अच्छा, अब दो बच्चों अलायंस है हमारे इंडिया में, एक को हम बोलते हैं एनडीए। एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, है ना। बच्चों जो बीजेपी है, बीजेपी, अब एनडीए के लीडर कौन है, बीजेपी, मतलब बीजेपी और जो उसकी सहयोगी पार्टियां हैं वो सब किसकी मेंबर हैं, एनडीए की। उन्होंने एक गठबंधन बना रखा है, अलायंस मतलब गठबंधन, है ना। तो बीजेपी और उसके अलायंस, उसके जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके गठबंधन को हम क्या बोलते हैं, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है बच्चों, और इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं उसके गठबंधन को हम क्या बोलते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, के शॉर्ट फॉर्म में यूपीए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अब इससे कई क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीए या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीए। तो आपका पता होना चाहिए, एनडीए मीन्स नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए मीन्स यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, ये भी आ सकता है विच पार्टी लीडेड एनडीए, तो आप क्या बताएंगे, बीजेपी। या आ जाए विच पार्टी लीडेड यूपीए, तो आप क्या लिखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा।
and it's my request to all of you that you must read your textbook also. Okay, you must watch my video, and after watching video you must read your textbook also. Okay, so have a nice day to all of you. Thank you.